محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کے حدیث ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. ضلع کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی کا سرکنڈا ہیڈ کوارٹر کا اچانک دورہ. پی ایچ سی، گورنمنٹ اسکول اور فرٹیلائزر گودام کا کیا معائنہ. تلنگانہ میں مزید 2 روز بارش کا امکان. محکمہ موسمیات. شہر کی اہم سڑکوں پر تاجران کی جانب سے قبضہ کرتے ہوئے کاروبار کی کوشش، جس سے موٹر سائیکل و راہگیروں کو مشکلات. ٹریفک پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن. اب خبریں تفصیل سے. ضلع کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے سرکنڈا منڈل ہیڈ کوارٹر کا کیا اچانک معائنہ. کلکٹر نے پرائمری ہیلتھ سینٹر، گورنمنٹ ہائی اسکول اور پرائمری اسکولوں، پی ایچ سی ایس، فرٹیلائزر گودام اور تحصیلدار کے دفاتر کا کیا دورہ اور میدانی سطح پر اندرما مکانات کی تعمیر کا بھی کیا معائنہ. ضلع کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے جمعرات کو سرکنڈا منڈل مستقر کا اچانک معائنہ کیا. انہوں نے پرائمری ہیلتھ سینٹر، گورنمنٹ ہائی اور پرائمری اسکول، پی ایچ سی ایس، فرٹیلائزر گودام اور تحصیلدار کے دفتر کا دورہ کیا. انہوں نے میدانی سطح پر مقامی استفادہ کنندگان کی جانب سے اندرما مکانات کی تعمیر کا معائنہ کیا. کلکٹر، جنہوں نے ڈبل بیڈ روم ہاؤس کمپلیکس کا بھی دورہ کیا، عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ سرکاری رہنما خطوط کے مطابق ایک فہرست تیار کریں تاکہ انہیں اہل افراد کو مختص کیا جا سکے. سب سے پہلے کلکٹر نے سرکاری پرائمری ہیلتھ سینٹر کا معائنہ کیا. انہوں نے چیک کیا کہ میڈیکل آفیسر اور عملہ حاضری کی فہرست کے مطابق ڈیوٹی پر موجود ہے اور میڈیکل آفیسر سے پی ایچ سی کی جانب سے فراہم کی جانے والی طبی خدمات کے بارے میں دریافت کیا. انہوں نے تجویز دی کہ ہر قسم کی ادویات وافر مقدار میں دستیاب ہو. وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں. دیہات میں ہیلتھ کیمپس کا انعقاد کیا جائے. بعد میں کلکٹر نے ضلع پریشد ہائی اسکول اور پرائمری اسکولوں کا دورہ کیا. انہوں نے دوپہر کے کھانے کے لیے تیار کی جانے والی اشیاء کا معائنہ کیا اور چیک کیا کہ آیا وہ مینو کے مطابق ہے یا نہیں، اور پانی کی سہولیات بیت الخلاء، کلاس رومز اور اسکولوں میں دستیاب سہولیات کا معائنہ کیا. اگر کسی اور انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے تو انہوں نے ایم ای او راملو اور پرنسپل ستیش اور نریش کو تجویز پیش کی کہ وہ امادش اسکول کمیٹی کے ذریعے تجاویز پیش کریں. انہوں نے مفت درسی کتب اور یونیفارم کے بارے میں دریافت کیا اور سرکاری اسکولوں میں بہتر سہولیات اور معیاری تعلیم کے بارے میں بتایا اور طلبہ کے داخلوں میں نمایاں اضافے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا اظہار کیا اور تجویز دی کہ ایسے طلبہ کی نشاندہی کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں جو اکثر اسکول سے غیر حاضر رہتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ باقاعدگی سے کلاسز میں حاضر ہو. انہوں نے ایچ ایمز کو مشورہ دیا کہ وہ دستیاب وسائل کا بہتر استعمال کریں اور اسکولوں کے انتظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے لگن کے ساتھ کام کریں. کلکٹر نے ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کے تعاون سے طلبہ کو شناختی کارڈ اور کھیلوں کے لباس فراہم کرنے پر انہیں مبارکباد دی. کلکٹر، جنہوں نے مقامی تحصیلدار کے دفتر کا دورہ کیا، تحصیلدار روندر سے بھوبھارتی کی درخواستوں کو حل کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں دریافت کیا.
उन्होंने रोजाना अहदाफ मुकर्रर करने और तमाम दरख्वास्तों को मुकर्ररा मुद्दत में हल करने के लिए काम करने का हुक्म दिया और भू भारती के निफाज में जिले को सबसे आगे रखने के लिए खुलूस नीयत से काम करने का मशवरा दिया, जिसे हुकूमत ने बड़े अज़्म के साथ आगाज किया है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड और नाम के इंदराज के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की फौरी जाँच की जाए और अहल अफराद को मंजूरी दी जाए और कहा कि हुकूमत इन दरख्वास्त दहिंदगान को फौरी तौर पर कार्रवाई फराहम करे। बादजा उन्होंने डबल बेडरूम मकान तामीराती कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और एमपीडीओ मनोहर रेड्डी को मशवरा दिया कि वो अहल इस्तिफादा कुनिंदगान को अलर्ट करने के लिए इक़दाम करें। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा मुकामी ओहदेदारान मौजूद थे। नई दिल्ली में एआईसीसी सरबरा मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइश गाह पर तेलंगाना कायदीन की हमरा रियासत तेलंगाना में जात पात मर्दमशुमारी पर तबादले ख्याल। रियासत तेलंगाना में जात के सर्वे के तरीक़ेकार इंतखाबात में किए गए वादे पर नई दिल्ली में एआईसीसी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की सरपरस्ती में तबादले ख्याल किया गया। पीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ और सीएम रेवंत रेड्डी ने पार्टी के सिरकुर्दा कायदीन को बताया कि किस तरह तेलंगाना में जात पात की मर्दमशुमारी का सर्वे साइंसी तौर पर किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जात पात का सर्वे साइंसी तरीके से किया गया था। ये मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। ताहम एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग के दौरान तेलंगाना के कायदीन से पुरलुत्फ और खुशगवार अंदाज में बात की। उन्होंने लतीफे सुनाकर कायदीन को हंसाया। एक मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा, खड़गे ने मजाक में कहा, गौड़ जी आप बीसी है या ओसी, जबकि सीएम रेवंत रेड्डी जो उनके साथ खड़े थे मजाक में कहा, महेश भाई पैदाइशी तौर पर बीसी है लेकिन सियासी तौर पर ओसी है। सब हंस पड़े। ताहम खड़गे की रिहाइशगाह पर बीसी जात की मर्दमशुमारी और 42% रिजर्वेशन पर 2 घंटे तक जारी रहने वाली बहस में एआईसीसी के सीनियर लीडर और लोकसभा के मरकजी पार्टी लीडर राहुल गांधी, एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर, के सुरेखा, सेक्रेटरी हरिका सेक्रेटरी व दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर मुकम्मल शुदा डबल बेडरूम मकानात की गरीबों में तकसीम करे, वरना बड़े पैमाने पर भूख हड़ताल की जाएगी। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया इंतबाह। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने मुतल्लिका वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से दी गई यकीन दहानियों को याद दिलाया जब उन्होंने मुतालिबा किया कि इंदिरा मकानात और डबल बेडरूम्स जिन्हें उन्होंने असेंबली गवाह के तौर पर पेश किया गरीबों में तकसीम किया जाए। जुमेरात को शहर में बीजेपी जिला दफ्तर में मुनाकिदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बिलखुसूस हाउसिंग मिनिस्टर शहर में बनाए गए डबल बेडरूम मकानात के मामले में लापरवाही बरत रही। गुज़िश्ता साल जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों के साथ जायजा लिया और कहा कि दशहरा तक मकानात फराहम किए जाएंगे, लेकिन अब एक और दशहरा आ गया। धनपाल ने शिकायत की कि अभी तक मकानात फराहम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने कहा था कि वो हर साल 3500 इंदिरा मकानात फराहम करेंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इख्तिदार में आए 2 साल हो जाएंगे, हुकूमत जवाब दे कि इंदिरा मकानात कितने फराहम किए गए और कहा कि क्या एक मजदूर या ऑटो ड्राइवर को शहरी इलाके में 1 गज की जगह मिलेगी। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया। माजी में बीआरएस लीडरों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था, हत्ता के तालाब तक नहीं छोड़ा था। धनपाल ने मुतालिबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इन डबल बेडरूम मकानात के बारे में वजाहत फराहम करे जो पहले ही तामीर हो चुकी। उन्होंने मुतंबा किया कि मकान की मरम्मत का काम 3 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए और मुस्तहिकीन की निशानदेही करके उन्हें अलर्ट किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो वो खुद भी मुस्तहिकीन के साथ तहरीक में शामिल हो जाएंगे। ఏదైతే జియో ప్రకారమో ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్ శాంక్షన్ చేయాలో జియోని పక్కన పెట్టి ఆ టిఆర్ఎస్ తొత్తులకు అంటే జియోలో ఏముంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఎన్ని, బీసీలకు ఎన్ని, మైనార్టీలకు, ఓసీలకు ఈ విధంగా పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. అవన్నీ పక్కన పెట్టి తన ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తే అది మేము సర్వే చేపిస్తే ఇల్లున్నోడు అలా ఉన్నాడు, ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీకి 2 ఇళ్ళు, ఇది ఈ రకంగా అది అడ్డమైంది. అందుకే ఆయన ఇవ్వలేకపోయిండు. ఇప్పుడు ఉన్న అధికారులకు కూడా క్లారిటీ వస్తుంది.
అయితే కలెక్టర్ గారికి స్పష్టంగా చెప్పినాము, మళ్ళీ డ్రా తీయాలి, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ప్రజల మధ్యన డ్రా తీసి అలాట్ చేయాలి. కలెక్టర్ ఆఫీస్ పక్కనున్న 80% కంప్లీట్ అయింది, 265 సుమారు. అది దానికి 3 కోట్లు శాంక్షన్ చేయమని దానికి ఈ 1.25 + 3 అయితే సుమారు మనకు 660 ఇండ్లు 12 ఏళ్ల నుంచి ఎదురు చూస్తున్న గరీబులకు దక్కే అవకాశం. निजामाबाद मजलिस कायदीन की म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी, शहर के मुस्लिम इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों में इजाफा, ठोस इक़दाम का मुतालबा। सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन की म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। इस मुलाकात के जरिए मजलिस कायदीन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश करते हुए बताया कि शहर के मुख्तलिफ अक़लियती व सलम इलाकों में आए दिन आवारा कुत्तों की तादाद कसीर हो रही और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए जोर देते हुए कहा कि चंद रोज़ कबल शहर के डिवीज़न 11 बाबन साहब पहाड़ी के रहने वाले एक 6 साला मासूम बच्चा मोहम्मद कबीर की उन आवारा कुत्तों के काटने से मौत वाक़ हो गई थी। उन इलाकों में आवारा कुत्तों की रोज़ बरोज़ इजाफे की वजह से मकामी अवाम, मासूम बच्चों और राहगीरों को शदीद जानी ख़तरा लाक है। रोज़ाना किसी न किसी इलाके में आवारा कुत्तों के अवाम व मासूम बच्चों और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद पर बढ़ते हुए जानलेवा की रोकथाम के लिए जल्द अज जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से डिवीज़न के लिहाज से स्पेशल टीम लगाकर आवारा कुत्तों को पकड़कर अवामी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के ठोस इक़दाम करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी के ज़रिए मुतालबा किया गया। मजलिस कायदीन की मौसर नुमाइंदगी पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इस खुसूस में जल्द ही डिवीज़न वाली सतह पर स्पेशल टीम तश्कील देते हुए आवारा कुत्तों को पकड़ने के इक़दाम करते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अवाम पर कुत्तों के हमले और अवामी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने मजलिस कायदीन के वफ़द को तयक़ुन दिया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फासिल, ज़िला सदर मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी एजाज हुसैन, साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, अब्दुल अली, मीर इरशाद अली, मोहम्मद मुस्तहसिन, माजिद सिद्दीकी के अलावा खलील अहमद, अरशद पाशा मौजूद थे। एमआईएम निज़ामाबाद यूनिट म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात करने की वजह ये कि गुज़िश्ता जो वाक़या हुआ था, कुत्ता काटने से बच्चे का जो इंतकाल हुआ था, उस ज़िमन में कमिश्नर साहब को प्रेशर बनाने के लिए हम यहाँ पर तमाम मिल के आए थे। कमिश्नर साहब ने कहा कि एक टीम जो कुत्ते पकड़ने वाली है, एक के बजाय 2 टीम और आगे तीसरी टीम भी तैयार हुई और उसको दवाखाना शिफ्ट करके उसका ऑपरेशन करने के भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो हमारा यही मुतालबा था कि जितना जल्दी हो सके टीम ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स लगा के ये निज़ामाबाद के कुत्तों का खात्मा किया जाए और साथ ही साथ ये जो ज़्यादा जो कचरा वगैरह जो पड़े हुआ है उसके लिए जोन वाइज एक गाड़ी अलग से लगाए तो कचरा लिफ्टिंग के लिए लगाए तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हफ्ते और इतवार की जो कचरा लिफ्टिंग के लिए गाड़ी नहीं आती, वो कचरा रोडों पे पड़े हुआ रहता, उससे भी ताउन फैल रहा। और हम कमिश्नर साहब ने हमें तयफ़ुन दिया कि जोन वाइज भी एक अलग से गाड़ी लगाएंगे, जो रेगुलर चल रहे वो गाड़ियाँ तो अपनी जगह है, उसके अलावा ये जो कुत्तों को पकड़ने का है वो 2 से 3 टीम अभी काम कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकते हैं हम कुत्तों का खात्मा करेंगे, बल्कि हमें यकीन दिलाया। हम उम्मीद भी करते हैं और पब्लिक से और आवाम से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए और कचरा वगैरह रोडों पे ना डालिए, ताकि क्योंकि आपके घर पे खुद एक गाड़ी आ रही है, तो एक गाड़ी पे कचरा डालिए, एक आध दिन गाड़ी नहीं आई तो भी उसको बाजू रखते हुए दूसरे दिन उसको कचरे को गाड़ी में डालिए, ताकि ये कुत्ते वहाँ पर आके अपना जो कचरा फैलाते वगैरह उसमें अपना खाने के वास्ते लोग घूमते रहते हैं। अब कुछ नहीं रहा तो ज़रूरी जाहिर बात है कुत्ता
चले जाता वो। हम उम्मीद करते हैं आवाम भी समझेगी ये चीज़ को और अपना कचरा जो वार्ड में गाड़ी आती है, रेगुलर जो गाड़ी आती है वो गाड़ी में कचरा डालिए। और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये चीज़ तमाम चीज़ें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जैसा कि हम बात किए थे उस पर अमलावरी करते हुए जल्द से जल्द उसको रुबे अमल लाए। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। जिले के मुतल्लिका इलाकों के स्कैनिंग मराकज का अचानक मुआयना करें। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान को दिया हुक्म और कवायद की खिलाफ वर्जी और कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले मराकज के खिलाफ कार्रवाई करने जिला कलेक्टर ने मुशावरती इजलास से दिया मशवरा। कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने महकमा तिब्बी और सेहत के ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो जिले के मुतल्लिका इलाकों में काम करने वाले स्कैनिंग मराकज का अचानक मुआयना करें। उन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मराकज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्री कॉन्सेप्शन एंड फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट एक्ट पर पाबंदी से मुत्तल्लिक़ जिले सतह की मुशावरती कमेटी का इजलास इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने हुक्म दिया कि जिले में सिर्फ वही स्कैनिंग सेंटर जो रजिस्ट्रेशन और तजदीद के तमाम मियारात पर पूरा उतरते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन और तजदीद की जाए। अगर कोई स्कैनिंग सेंटर हामिला खवातीन की स्कैनिंग के बाद पैदा होने वाले बच्चे की जिन्स का तयन करता है या मर्द तो उनके खिलाफ PCPA DT एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसे मराकज़ के परमिट मनसूख किए जाए और अगर जरूरत पड़े तो जब्त कर लिए जाए और कहा कि जिन्स के तयन और कत्ल में हौसला अफजाई और मुआवनत करने वालों को कानून के मुताबिक कैद के साथ जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। दरअसल उन्होंने कहा कि हर स्कैनिंग सेंटर में सिर्फ एक मुकर्ररा फीस वसूल की जाए और चार्जेस के बारे में आगाह करने के लिए हर सेंटर में एक टेबल आविज़ा किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिले के तमाम स्कैनिंग सेंटर्स रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स का बाकायदगी से इंदराज करें और ऐसा ना करने वालों की रजिस्ट्रेशन और तजदीद ना की जाए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि जिन्स के तयन और कत्ल की रोकथाम और अवाम में शऊर बेदार करने के लिए क़वानीन के बारे में जिला भर में वसी पैमाने पर आगाही सेमिनार मुनक़िद किए जाए और तजवीज़ पेश की कि बच्चियों की तरजीह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कूलों कॉलेजों गाँव और मंडल सतह की वफाकी मीटिंगों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मुनक़दा अमवादी प्रोग्रामों में माहाना मीटिंगों में आशा वर्कर्स के दौरों में IKP और DRDA के मुख्तलिफ महकमे के कोऑर्डिनेशन मीटिंगों में वसी पैमाने पर बेदारी पैदा की जाए। इस मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर अंकित, DMHO डॉक्टर राजश्री, IMA नुमाइंदे डॉक्टर श्रीनिवास, लीगल सेल के नुमाइंदे G रवि प्रसाद, NGOs के नुमाइंदे और मुतल्लिका ओहदेदारान ने शिरकत की। तेलंगाना में आज और कल शदीद बारिश के इम्कान। महकमा मौसमियात ने की पेश कयासी, कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। शुमाली खलीजी बंगाल के वस्ती इलाके में बनने वाले हवा के कम दबाव के सबब तेलंगाना में आज और कल शदीद बारिश के इम्कान थे। महकमा मौसमियात ने इस बात का इज़हार किया तमाम अजला में हल्की सी दरमियानी बारिश मुतवक्के है, जबकि बाज़ मकामात पर गर्ज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश होने का इम्कान है। भोपालपल्ली, भद्राद्री कोत्तागुड़म, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनुमकुंडा अजला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया, जिसके पेश नज़र महकमा मौसमियात ने इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। कोडगीर व मुख्तलिफ मंडलों में BRS कायदीन ने BRS पार्टी वर्किंग सदर KTR की सालगिरह धूमधाम से मनाई। केक काटा, आतिशबाजी करते हुए KTR को सालगिरह की दी मुबारकबाद। कोडगीर और पुतंगल मंडल मुस्तकर में साबिका वजीर BRS पार्टी वर्किंग सदर KTR की सालगिरह तकरीब बनाएगी। कायदीन ने कोडगीर सरकारी अस्पताल में मरीजों में फल तकसीम किए और बस स्टैंड के अहाते में
पटाखेबाजी करते हुए, केक काटते हुए जोश व खरोश का मुजाहरा किया। मंडल बीआरएस कायदी ने पोतंगल मंडल मुस्तकर में केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर गांव वालों में फूलों के पौधे तकसीम किए। बाद में उन्होंने केक काटा और केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मंडल कन्वीनर किशन, साबिक सरपंच श्रीनिवास गौड़, गंगा प्रसाद गौड़, संतोष व दीगर भी मौजूद थे। इसी तरह रुद्रपुर मंडल मुस्तखर के बस स्टैंड के अहाते में बीआरएस पार्टी मंडल इंचार्ज जी माधव ने पार्टी रियासती वर्किंग सदर के तारक रामाराव की सालगिरह तकरीब बनाई। उन्होंने केक काटा और केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी सीनियर लीडर साइलू, गजेंद्र, दीगर कायदीन मौजूद थे। शहर की अहम सड़कों पर आजादाना कब्जा करके कारोबार करें, जिसकी वजह से मोटरसाइकिलों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात, जिसके चलते आज पुलिस ने अवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लेते हुए नाजायज तजावुजात के खिलाफ क्रैक डाउन किया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात पर अवाम ने खुशी का इजहार किया। निजामाबाद शहर की अहम सड़कों पर कई सालों से ताजिरों ने कब्जा जमा रखा है और बगैर किसी आगाही के अपने कारोबार चलाते हुए अवाम के लिए परेशानी का बाज बन रहे हैं। शहर की तमाम सिमतों में सड़कों और फुटपाथों पर नाजायज कब्जे किए गए। शहर में बढ़ती हुई आबादी और गाड़ियों की तादाद के बायस ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस के लिए बोझ बन गया। हर तरफ सड़कों पर कब्जों के मनाजिर देखने को मिलते हैं। आला हुकाम के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने शहर के बास इलाकों में सड़कों पर कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की। सड़कों पर कब्जे, शीट्स खड़े करने, दुकानों का सामान जखीरा करने व दिगर से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने जुमेरात को आजम रोड, बड़ा बाजार और पोस्ट ऑफिस के इलाकों में सड़कों पर नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। सड़कों पर खाबिस, शीट्स, साइन बोर्ड्स और आलात को हटाया। अवाम ने खुशी का इजहार किया क्योंकि सड़क ज्यादा चौड़ी नजर आ रही। इस मौके पर ट्रैफिक ऑफिसर ने कहा कि सड़क के दोनों तरफ तजावुजात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूंकि ये मेन रोड है, इसलिए आला हुकाम ने कहा कि आप दोनों तरफ 60 फीट रखकर अपना कारोबार कर सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में भी कई मरतबा कार्रवाई की गई और हर दुकान के मालिक ने ताउन करने का वादा किया। शहर में रोजगार जमानत वाली नौकरियां फराहम करके गरीबों की मदद की जाए। सीपीएम पार्टी कायदीन ने किया मुतालिबा और कहा कि देहातों में मुलाजिमतों में कमी की वजह से गरीब अवाम को शहरों का रुख करना पड़ रहा। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि कस्बों में भी रोजगार न होने की वजह से गरीबों को मुश्किलात का सामना है। निजामाबाद सिटी कमेटी के जेर एहतमाम पार्टी कारकुनों के लिए 2 रोज़ा तरबियती कोर्स के हिस्से के तौर पर पार्टी जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने पार्टी दफ्तर में तरबियती क्लासेस का इफ्तिताह किया। बादशाह उन्होंने कहा कि देहात में काम कम होने की वजह से गरीब लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। शहरों में भी रोजगार न होने की वजह से बहुत से गरीब अवाम को अपने खानदान की किफालत में मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुतालिबा किया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए शहरों में रोजगार की जमानत की स्कीमें शुरू करे। इस तरह गुर्बत में कुछ कमी आएगी और उन्हें रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बहुत से मज़ाफाती कॉलोनियों की कच्ची आबादियों में बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है और मख्तस करदा फंड्स सिर्फ उन इलाकों में खर्च किए जा रहे जहां कम्युनिटीज रहती है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि कच्ची आबादियों में पीने का पानी भी फराहम नहीं किया जा रहा और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा, जिससे अवाम अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की सहूलियात का फुकदान रात के वक्त समाज दुश्मन कुव्वतों के लिए रुकावट बन रहा। एक तरफ मरकजी हुकूमत का देही गरीबों के लिए रोजगार की जमानत के कामों के लिए फंड्स में कमी करना दुरुस्त नहीं और वो सिर्फ कंपनियों के लिए दौलत नहीं बांध रही, बल्कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी हिमायत करे, ना कि कंपनियों के लिए दौलत को बांधे। उन्होंने तजवीज़ दी कि हुकूमत बुनियादी तौर पर तालीम और तिब्बी सहूलियात का इंतजाम करे ताकि गरीबों के कुछ अखराजात कम हो सके। इस मौके पर सीपीएम सेक्रेटरी सुजाता, सिटी कमेटी मेंबरान नरेश, दीपिका, दीगर भी मौजूद थे। ఉన్నత వర్గాలకు మాత్రమే ఊడిగం చేసేటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉన్నది। దీన్ని సిపిఎం పార్టీగా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। పట్టణాల్లో ఉపాధి హామీ పనులకి నిధుల్ని కేటాయించాలా, పట్టణ పేదల్ని ఆదుకోవాలనేటువంటిది కోరుతా ఉన్నాం।
అట్లాగే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇందిరమ్మ ఇండ్లని నిర్మించాలని అనుకుంటా ఉన్నారో నిజామాబాద్ నగరంలో ఈరోజు దళారీ వ్యవస్థ పెరిగిపోతూ ఉన్నది. వేలాది రూపాయలు నిరుపేదల దగ్గర వసూలు చేసి ఇందిరమ్మ ఇండ్లని మంజూరు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. దీన్ని నివారించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదలకు ఇచ్చినటువంటి సంక్షేమ పథకాల అమల్లో వెంటనే ఇచ్చిన హామీల్ని అమలు జరపడం కోసం కృషి చేయాలని, లేకపోతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు పోరాటాల్లోకి రావాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। प्रवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब इजाजत, अल्लाह हाफिज।